Hello and welcome to Law Gurukul. This is the fourth lecture on jurisprudence. In today's video, we will discuss the important definitions given by different jurists in jurisprudence और उन्होंने क्या important statement दी है jurisprudence में. So let's start. John Austin. He was an English legal theorist and he propounded the theory of legal positivism. ऑस्टिन जो थे वो पॉजिटिव लॉ को सपोर्ट करते थे. तो ऑस्टिन ने लॉ की जो डेफिनेशन दी है वो है लॉ इज नथिंग बट कमांड्स फ्लोइंग फ्रॉम द सॉवरेन टू दोज अंडर हिज हैबिचुअल ओबीडियंस एंड फेलियर टू कंप्लाई विद द कमांड्स लीड्स टू इंपोजिशन ऑफ सैंक्शन. ऑस्टिन के लॉ का जो डेफिनेशन है उसमें 3 वर्ड्स बहुत ही पॉपुलर है, सॉवरेन, कमांड और सैंक्शन. तो आपको ये पूरा डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है. You just remember these 3 words, sovereign, command और sanction. अगर किसी definition में आपको ये तीनों words मिल रहे हैं, it means the definition is given by John Austin. उन्होंने जो positive law का concept बनाया, उसमें 3 important attributes जो थे, वो यही थे, command, sovereign और sanction. तो इससे अलग question भी आते हैं कि 3 attributes of positive law, ये कौन-कौन से हैं? That is command, sovereign and sanction. और ये 3 attributes of positive law ये concept किसने दिया है? तो the answer will be John Austin ने. According to John Austin, उन्होंने sovereignty के बारे में भी ये statement दी है that sovereignty must be determined, it is essential, it is indivisible and is unlimited and illimitable. So this statement regarding sovereignty is also given by John Austin. Next is Salmond. He is the leading contemporary representative of British positivism. Okay, ये दोनों positive law के हैं. Salmond is also related to the British positivism. As per Salmond, jurisprudence is the science of first principle of civil law. Salmond का जो jurisprudence का definition है, उसमें 2 चीजें आपको याद रखनी है, science and civil law. क्योंकि इन्होंने जो books भी लिखी है, काफी वो science और philosophy से relate करती है. तो आप ऐसे just याद रखना दैट साइंस, सिविल लॉ ये सारे सामंड से रिलेट करते हैं. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ये कई बार एग्जाम में आया है. ये सामंड ने ये बात कही थी दैट केस लॉ इज गोल्ड इन द माइन, अ फ्यू ग्रेन्स ऑफ द प्रीशियस मेटल टू द टर्म्स ऑफ यूजलेस मैटर, व्हाइल स्टैट्यूट लॉ इज कॉइन ऑफ द रियल्म रेडी फॉर इमीडिएट यूज. तो पूरा स्टेटमेंट अगर आप नहीं भी याद रखो तो फर्स्ट सेंटेंस जो है वो आप याद रखो दैट केस लॉ इज गोल्ड इन द माइन. ओके, so this statement was given by Salmond. Salmond also said that law is without doubt a remedy for greater evil, yet it brings with it evils of its own. Law जो है वो greater evils का remedy है, but law के साथ itself बहुत सारे evils जो है वो connected है. So this concept was given by Austin. A legal person is any subject matter other than a human being to which law attributes personality. Salmond ने legal personality की concept पर भी ये statement दी थी that a legal person is any subject matter other than a human being. Legal person सिर्फ कोई subject matter भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि हम किसी human being को ही legal person मानेंगे. कोई भी ऐसा subject matter जिसकी एक अलग सी legal personality है, जिससे law किसी तरह से connected है, तो वो भी legal person के definition में ही आएगा. So this statement was made by Salmond. Rousseau. Law is not only a set of rules but is a method or technique for harmonizing conflicting interests. This statement was given by Rousseau. Technique harmonizing वाला जो concept है वो Rousseau ने दिया था. इन्होंने सोशल इंजीनियरिंग का जो कंसेप्ट है वो रूसो ने दिया था, इसीलिए कोई भी स्टेटमेंट जिसमें सोशल इंजीनियर ये टर्म आए तो आप समझ जाना ये स्टेटमेंट रूसो की दी हुई है. अ लॉ मेकर एक्ट्स एज अ सोशल इंजीनियर बाय अटेम्प्टिंग टू सॉल्व प्रॉब्लम्स इन सोसाइटी यूजिंग लॉ एज अ टूल. तो रूसो ने सोशल इंजीनियरिंग का कंसेप्ट दिया था, इसलिए वो कह रहे हैं कि लॉ मेकर्स जो है वो सोशल इंजीनियर की तरह होते हैं जो सोसाइटी की किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लॉ को एज अ टूल यूज करते हैं. ओके, सो दिस स्टेटमेंट वाज गिवन बाय रूसो. हेनरी मैने. द मूवमेंट ऑफ प्रोग्रेसिव सोसाइटीज हैज हियरटू बीन अ मूवमेंट फ्रॉम स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट.
हेनरी मैन ये बहुत पुराने ज्यूरिस्ट है, इसलिए इनकी जो डेफिनेशन की इंग्लिश है वो भी थोड़ी सी डिफरेंट है। तो अगर आपको इस तरह का कुछ एंशिएंट इंग्लिश वर्ड मिल रहा है डेफिनेशन में, इट मींस इट इज गिवन बाय हेनरी मैन। ही इज रिलेटेड टू एंशिएंट लॉ। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ज्यूरिस्ट जो है वो किस टाइम के लॉ से रिलेट करते हैं, तो हेनरी मैन इज रिलेटेड टू द एंशिएंट लॉ। Great. Jurisprudence is in truth no more a formal science than physiology. This statement was given by Gray. इन्होंने लीगल राइट का भी डेफिनेशन दिया that legal right means a capacity residing in one man of controlling with the assent and assistance of the state the acts of the other. लीगल राइट क्या हो रहा है, that ये किसी मैन की कैपेसिटी है कि वो अपने एसेट्स को कंट्रोल करे स्टेट की असिस्टेंस से, ताकि कोई एक्ट ऑफ द अदर यानी किसी थर्ड पार्टी किसी दूसरे पर्सन के एक्ट से, उनके किसी एक्ट से अपने प्रॉपर्टी को कंट्रोल करे, अपने एसेट को कंट्रोल करे, उसे कहते हैं लीगल राइट। दिस डेफिनेशन वाज गिवन बाय ग्रे। अल्पियन, jurisprudence is a science of just and unjust. सिंपल स्टेटमेंट है, अल्पियन ने दी थी और ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको याद रखना कोई बड़ी बात नहीं है। jurisprudence is a science of just and unjust. ओके, जस्ट अनजस्ट अल्पियन ने दी। सिसेरो, jurisprudence is the philosophical aspect of knowledge of law. This statement was given by Cicero. Bentham, in his book An Introduction to the Principles of Morals and Legislation, cited for four sources of pleasure and pain. ये बेंथम का बहुत पॉपुलर एक बुक है, दैट इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल्स ऑफ मॉरल्स एंड लेजिस्लेशन। इस बुक में उन्होंने प्लेजर एंड पेन के 4 सोर्सेज दिए। ये 4 सोर्सेज क्या है? फिजिकल, पॉलिटिकल, मॉरल एंड रिलीजियस। जैसे आप उसको ऐसे भी कह रहे हैं, ये जो 4 टाइप्स ये हैं, फिजिकल, पॉलिटिकल, मॉरल, रिलीजियस, ये प्लेजर एंड पेन के 4 काइंड्स हैं। तो एग्जाम में ऐसे भी पूछा जाता है दैट कि प्लेजर एंड पेन के 4 टाइप्स कौन कौन से हैं? फिजिकल, पॉलिटिकल, मॉरल, रिलीजियस। या फिर बेंथम ने जो 4 सैंक्शन दिए वो कौन कौन से हैं? तो फिजिकल, पॉलिटिकल, मॉरल, रिलीजियस। ओके, और ये प्लेजर एंड पेन का जो कंसेप्ट है और ये जो 4 सैंक्शंस है वो किन्होंने दिया था? बेंथम ने। लॉ इज एन असेंबलिंग ऑफ साइंस। लॉ के रिगार्डिंग बेंथम ने ये डेफिनेशन दी थी दैट लॉ इज एन असेंबलिंग ऑफ साइंस. It is declaration of volition conceived or adopted by sovereign in a state. तो अगर आप फर्स्ट स्टेटमेंट भी अगर याद रख रहे हो दैट लॉ इज एन असेंबलिंग ऑफ साइंस, ये स्टेटमेंट किन्होंने दी थी? किसने दी थी? बेंथम ने दी थी। H.L.A. HART. 3 defects in the simple social structure of primary rules as enunciated by him. There's uncertainty, static and inefficiency. H.L.A. HART ने सोशल स्ट्रक्चर को लेकर के थ्योरी बनाई है और इसमें उन्होंने कहा है कि सोशल स्ट्रक्चर में बेसिकली 3 टाइप के डिफेक्ट्स हैं। ये डिफेक्ट्स कौन कौन से हैं? अनसर्टेनिटी, स्टैटिक एंड इनएफिशिएंसी। तो इसमें से 2 क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। फर्स्ट, ये 3 डिफेक्ट्स, ये जो स्टेटमेंट है ये कॉन्सेप्ट किनका है? H.L.A. HART का। सेकेंड, ये 3 डिफेक्ट कौन कौन से हैं जो सोशल स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं एज पर हार्ट? कौन कौन से 3 डिफेक्ट्स हैं? अनसर्टेनिटी, स्टैटिक एंड इनएफिशिएंसी। इन्होंने कहा दैट लॉ इज अ यूनियन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी रूल्स। अकॉर्डिंग टू हार्ट, लॉ क्या है? ये प्राइमरी और सेकेंडरी रूल्स का यूनियन है, मिक्सचर है। जूलियस स्टोन, jurisprudence is lawyers extraversion. ये क्वेश्चन तो एग्जाम में कई बार पूछा गया है। लॉयर्स एक्स्ट्रावर्शन, बस एक वर्ड आप याद रखो, लॉयर्स एक्स्ट्रावर्शन। ये स्टेटमेंट किसने दी है? जूलियस स्टोन ने दी है। इट इज लॉयर्स एग्जामिनेशन ऑफ द precepts, ideals and techniques of the law in the light derived from present knowledge in disciplines other than the law. तो पूरा स्टेटमेंट आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, जस्ट रिमेंबर लॉयर्स एक्स्ट्रावर्शन। ये स्टेटमेंट दी थी जूलियस स्टोन ने। He wrote Law in a Changing Society. ये बहुत फेमस बुक है जूलियस स्टोन ने लिखी थी, Law in a Changing Society. John Finnis.
Justice is realized only through good law. This statement was given by John FINNIS. Leveling. Jurisprudence is as big as law and bigger. तो एक छोटा सा स्टेटमेंट है jurisprudence की डेफिनेशन को लेकर के जॉन फिनिस एंड लेवलिंग का. STAMMLER. Moral value needs to be included in a definition of positive law. पॉजिटिव लॉ में मॉरल वैल्यू भी इंक्लूड होनी चाहिए. ये स्टेटमेंट दी गई थी फ्रॉम जॉन स्टैमलर. जेरोम हॉल, he said that natural law with a variable content. इन्होंने एक कंसेप्ट बताया था, नेचुरल लॉ जो है उसमें वेरिएबल कंटेंट्स हैं. मॉरिस, a sophisticated version of natural law has been put forward in the tradition of Aristotle and Aquinas. मॉरिस ने नेचुरल लॉ के लिए कहा है कि एक एरिस्टोटल और एक्विनस ने जो नेचुरल लॉ का स्टेटमेंट दिया है, जो नेचुरल लॉ थ्योरी जो बनाई है वो काफी सोफिस्टिकेटेड है. सो दिस स्टेटमेंट वाज गिवन बाय मॉरिस. पाश्का, नो वन हैज एनी अदर राइट देन ऑलवेज टू डू हिज ड्यूटी. दिस स्टेटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है और इजी स्टेटमेंट भी, आपको याद भी रखने में आसानी होगी. नो वन हैज एनी अदर राइट देन ऑलवेज टू डू हिज ड्यूटी. एक पर्सन का सबसे बड़ा राइट क्या है कि वो हमेशा अपनी सारी ड्यूटीज परफॉर्म करे, क्योंकि हमने पढ़ा है दैट राइट एंड ड्यूटीज इंटर रिलेट करते हैं. एक पर्सन का राइट दूसरे पर्सन की ड्यूटी है. तो राइट का सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यही है कि हम हमेशा अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करते रहें. दिस स्टेटमेंट वाज गिवन बाय पाश्का. रुडोल्फ वॉन आयहरिंग, he is also called the father of sociological jurisprudence. He developed the concept of philosophy of social utilitarianism. Social utilitarianism का concept किसने दिया था? रुडोल्फ वॉन आयहरिंग ने. उन्होंने कहा है that law is the guarantee of the conditions of life of society assured by the state. यानी कि state जो है, state सोसाइटी में जो भी कंडीशंस हैं उन्हें प्रॉपर करने की गारंटी देता है लॉ. ओके, लाइफ कंडीशंस ऑफ लाइफ ऑफ सोसाइटी अश्योर्ड बाय द स्टेट. दिस स्टेटमेंट वाज गिवन बाय रुडोल्फ वॉन आयहरिंग. Duguit, right is power over an object which by means of right is subjected to will of the person enjoying the right. Duguit ने राइट से रिलेटेड ये डेफिनेशन दी है कि राइट जो है वो किसी चीज का, किसी ऑब्जेक्ट का वो पावर है जिससे हमारी उस राइट को एंजॉय करने का विल जो है वो भी कनेक्ट करता है. ये हमने राइट वाले वीडियो में पढ़ा था, ये विल वाला कंसेप्ट, कि अगर हमारा किसी चीज में इंटरेस्ट ही नहीं है, विल ही नहीं है, तो हम उस पे अपना राइट नहीं क्लेम कर पाएंगे. तो डुगिट ने भी सेम स्टेटमेंट दी है फॉर राइट, दैट राइट इज पावर ओवर एन ऑब्जेक्ट. किसी ऑब्जेक्ट पर हमारा पावर है. इसका मतलब ये हुआ कि राइट इज सब्जेक्टेड टू विल ऑफ द पर्सन एंजॉयिंग द राइट. इसका मतलब उस राइट को एंजॉय करने का इंटरेस्ट, विल भी हमारे पास है. हॉलैंड, राइट इज नॉट द इंटरेस्ट बाय इटसेल्फ बट इट इज अ मीन बाय विच एंजॉयमेंट ऑफ इंटरेस्ट इज सिक्योर्ड. हॉलैंड कह रहे कि राइट अपने आप में इंटरेस्ट नहीं है. राइट एक ऐसा मीडियम है जिसके थ्रू हम अपने इंटरेस्ट को सिक्योर कर रहे हैं. ओके, दिस स्टेटमेंट वाज मेड बाय हॉलैंड. जैसे डुगिट ने कहा कि राइट जो है वो इंटरेस्ट पे डिपेंड कर रहा है, विल और इंटरेस्ट पे. राइट का पावर है बट इट इज सब्जेक्टेड टू विल. अगर हमारा विल है तो ही वो राइट वाला पावर जो है हम यूज कर पाएंगे. बट हॉलैंड क्या कह रहे हैं, राइट अपने आप में इंटरेस्ट नहीं है. राइट एक मीन है जिसके थ्रू हम किसी प्रॉपर्टी में एंजॉयमेंट में उसका इंटरेस्ट जो है वो एक्वायर कर रहे हैं. सैविग्नी, कस्टम्स आर सुपीरियर टू द लेजिस्लेशन. कस्टम्स जो है उन्हें सैविग्नी ने कस्टम्स को लेजिस्लेशन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, ज्यादा सुपीरियर माना है. Therefore, legislation should not abrogate the customs, rather synthesize them into with the common consciousness of the people and society. सैविग्नी ये कह रहे हैं कि लेजिस्लेशन को इस तरह से बनाना चाहिए कि वो कस्टम्स को
ओवरराइड ना करे, उन्हें खत्म ना करे, बट वो पीपल सोसाइटी के नीड के अकॉर्डिंग और सोसाइटी के सभी लोगों के कॉमन कॉन्शियसनेस के अकॉर्डिंग उसे सिंथेसाइज करे, यानी कस्टम को लेजिस्लेशन से अलग ना करे। जो लेजिस्लेशन बना रहे हैं उन्हें कस्टम्स और पीपल्स की नीड और सोसाइटी के अकॉर्डिंग मिक्स करके उनको सिंथेसाइज करके लेजिस्लेशन बनाए। तो आप जस्ट फर्स्ट स्टेटमेंट में याद रखोगे दैट कस्टम्स आर सुपीरियर टू द लेजिस्लेशन, ये कंसेप्ट दी थी सैविग्नी ने। Savigny also said that law is not universal in its nature like language. It varies with people and age. Law जो है वो सबके लिए एक नहीं हो सकता है। Law differ करता है, जैसे like language, it varies with people and age. Law भी यूनिवर्सल नहीं है, लैंग्वेज की तरह people to people और age to age वैरी करता है, यानी एक माइनर के लिए और एक एडल्ट के लिए लॉ सेम नहीं हो सकता है। ओके, तो लॉ इज नॉट यूनिवर्सल, ये पीपल और एज के अकॉर्डिंग जो है ये चेंज होता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। इसमें ज्यूरिस्प्रूडेंस के सारे डेफिनेशंस और इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट्स मैंने एक सिंगल वीडियो में कंपाइल कर दिए हैं। आई होप इससे आपको पढ़ने में और यूजीसी नेट एग्जाम के प्रिपरेशन में बहुत हेल्प मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल